the class. Okay, so this is a small. Actually, this is an assignment on biomolecules. Are you seeing the screen? Yes, sir. What Yes, is sir. what is Yes, this? sir. You know what is this? Can you tell me? So this is the Nobel medal. समझ रहे हो? तो ये जो photographs है, ये 2 sides of the Nobel Medicine and Physiology medal है. Understood? And all these logos are the logos of different aims in India. तो इसलिए हम लोग को एम्स के नीचे कुछ सोचना ही नहीं चाहिए. एंड उधर जाने का एक ही रास्ता है, आपको पता है, एंड दैट इज थ्रू दिस लोगो. ये लोगो किसका है? कैन यू गेस उसमें क्या लिखा है? JJS. समझ में आ गया? So this is my logo. तो इधर जाने का एक ही रास्ता है, that is JJS. आ गया मजा? चलिए. So now let us see the beauty of this assignment. है कि नहीं? तो इस assignment में आप देखिए. Now see here. आप देख रहे हो इस assignment में we are talking about water. You are seeing a spider who is walking on water. So is it possible? Yeah, it is talking nonsense. And if it is possible, it is due to which property of water? Anybody? Must have had oily feet or something like that, जिसकी वजह से density कम की वजह से चल सकता हो. Bas. Okay. Next. Any other options? Sir, intermolecular force of attraction. किसका? Yes. Sir, between the water molecules. और any other answers? धड़ाधड़ बोलते रहो. जब जिसका मैं yes बोलूंगा वही आंसर है. सॉरी, आप क्वेश्चन रिपीट फिर से कर सकते हैं? क्वेश्चन है कि ये जो स्पाइडर आपका पानी पे चल रहा है, ये कोई मजाक है ना? ये हो सकता है. अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? विच प्रॉपर्टी ऑफ वाटर? द क्वेश्चन इज ऑलरेडी रिटन इन द पेपर. इट इज रिटन हियर क्वेश्चन है कि नहीं? चलिए बोलिए. तो कौन सा प्रॉपर्टी ऑफ वाटर ये फैसिलिटेट करता है? जल्दी जल्दी बोलो. Density. No. Force of surface tension. Very good. So the Surface answer is surface tension. So actually, what is surface tension? Already one of your friend has answered it. So it is the what? It is the relationship. Yeah, it is the chemical attraction between the different water molecules. Now, इधर आप क्या देख रहे हो नीचे वाले डायग्राम में? Iceberg. So what property of water helps in this physiology? Anybody? Density. आप क्या देख रहे हो? आप क्या देख रहे हो actually? What are you seeing? Ice is floating on water. Very good. So why ice is floating on water? Ice Because having of the ice is cage-like than water. Less Ice- dense than water. Very good. Density difference. Ice is Density. less Less dense. dense than water. आ गया मजा? तो Yes, sir. Yes, sir. इस तरह के छोटे छोटे असाइनमेंट्स मैं कराता हूँ. चलिए. नाउ ऐसे ही आपके बहुत सारे चीजें हैं. ये सब पढ़ने से करोगे एक्चुअली. तो these are things you have. देख रहे हो? This is the quality of assignments, and this is from one of the best books in the whole world. So you can solve any of these. But अभी आपको समझ. Can anybody tell what is this actually? किसी ने पढ़ा है कुछ? So this is actually protein folding. So do you understand these structures? आप पढ़े हो ना? नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े तो पास कर दो. You don't waste time. नहीं पढ़े सर. चलो good. No problem. No sir. No problem. What is this actually? What is this?
कार्बन डबल हेलिक्स पेयर, द Yes. डबल हेलिक्स पेयर का प्रोटीन्स GCAD pairs. Yes, sir. No, no. DNA का है. DNA The base double and the helix. phosphate sugar. Yes. This is the DNA DS. nucleotide structure. Nuclear. हो गया. This is the DS DNA helix and अलग अलग bonds हमको पहचानना है, वो हम करेंगे with time. So these are carbohydrates, है कि नहीं? तो ये anybody can tell this, ये आपको आना चाहिए. What is a? Cell membrane. Phospholipid bilayer. What is a? Phospholipid bilayer. adenine, glycoproteins and glycolipids. What is A in this diagram? E is, it is X. Like A is Proteins. extracellular fluid. ठीक है, ये बाहर है ना, ये कुछ तो दिखा नहीं रहा, हवा को दिखा रहा है. So this is actually extracellular fluid. What is B? Protein. protein, glucoprotein. Yes. Protein. Yes. Extrinsic protein. सुनो सुनो, No, ये ग्लाइको है, Carbohydrate. ये ग्लाइको है एंड ये प्रोटीन Glycoprotein. है. Protein. These are small. Small oligosaccharides. Yeah. ठीक है. So these are small oligosaccharides. What is C? tail end of the lipid bilayer. Yes, this is the hydrophobic. Okay. Hydrophobic. Yes, hydrophobic End of tails of lipid bilayer. ठीक है. Now what is E? Intracellular. Cytoplasm. Very good. Intracellular fluid. Very Intracellular. good. Intracellular. Very good. Very good. What is F? F is a glycoprotein. ओके. ये पूरा का पूरा चीज जो है ये ग्लाइकोप्रोटीन है. अंडरस्टूड. F is equal to B plus D. Okay. This is equal to B plus D. ठीक है. Understood. Then what is D actually only? This is the protein. Protein. As much. Protein. देख रहे हो. तो ऐसे छोटे छोटे असाइनमेंट्स करेंगे. एंड ये डायग्राम आपको कौन सा कालू बुक में मिलता है बताओ? कालू 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 नहीं, आकाश. मिलता है कि नहीं मिलता है? एलन नहीं. अभी तक सर नहीं पढ़ा. ये आपको जालू में ही मिलेगा. जेजेस बुक, और किसी बुक में नहीं मिलेगा. समझ में आया? चलो, तो इसलिए डोंट बी कॉन्टामिनेटेड. चलिए, तो एक असाइनमेंट हमने कर लिया. तो इस तरह से हम लोग करेंगे. एक्चुअली दीज आर क्लास असाइनमेंट्स. मैंने जो हम लोग पढ़ेंगे अगला दिन, पहला जो 5 मिनट है हम लोग ये असाइनमेंट करेंगे. जो बच्चे लेट ज्वाइन करेंगे वो ये असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो जनरली इट टेक्स 5 to 7 मिनट्स फॉर चिल्ड्रन टू ज्वाइन. तो उस दौरान मैं ये असाइनमेंट्स कराऊंगा. ओके. तो इसलिए आपका पुट योर फिंगर ऑन द बटन एंड इमीडिएटली ज्वाइन. अंडरस्टैंड? चलिए, तो नाउ आई विल शेयर यू अनदर असाइनमेंट. सो दैट इज बेसिकली अ KVPY असाइनमेंट. ओके. तो आप लोग उसको डिस्कस करेंगे. चलिए, गुड. तो यू विल टेल ABCD ओनली. Is this screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Chaliye, so now let's magnify this question. Now, are you able to see the first A. question? चलिए, good. उसके बाद 2. Parietal. Temperature. Parietal. सुनिए, in brain the Parietal sensory lobe. Parietal. A. brain. बोलो. Parietal lobe. A. शांत. सी, ये आपको अच्छा लग रहा है? ऐसे सुनाई दे रहा है?
ताहले सर why ये are you, पता नहीं। तो why are you behaving like a fish market? देखो जेजेस एक बहुत डेंजरस टीचर का नाम है, ओके, इसलिए वी शुड ऑलवेज बी कल्चर्ड। तो एक श्लोक सुनिए, विद्या ददाति विनयं मीन्स एजुकेशन गिव्स यू प्लेजर, ओके, विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रत्वम। अगर आप पढ़ के खुश हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। पात्रत्वम धनमाप्नोति, तो अगर आप खुशी से कुछ भी कर सकते हो तो पैसा भी मिलेगा, धन धर्म तथा सुखम, धन आएगा तो सुख भी आएगा। इसलिए एंजॉय करिए, माछाट मत बनाइए। चलिए, now one of you girls was telling parietal lobe. How are you so sure it is parietal lobe, my dear? Parietal lobe handles those parts. Temporal is for the audio sessions. नहीं, do you know any other thing? Parietal lobe कैसे हैंडल करता है? Which lobe of parietal lobe? मैंने आप और कुछ जानते हो इस बारे में? तो एक्चुअली उसका जो चार्ट हो लोब, इसी के बारे में जानते हैं। सुनिए, तो पैरिएटल लोब में सेंसरी एरिया होता है, ओके, सो द पैरिएटल लोब इज सेंसरी, ओके, आई विल राइट इट, डोंट वरी, ठीक है। नाउ जो पैरिएटल लोब है वो सेंसरी एरिया होता है, लिम्बिक लोब है, दिस इज व्हाट, दिस गिव्स योर प्लेजर, ओके, या बिहेवियर। Temporal lobe is basically concerned with hearing and balance, ठीक है, and frontal lobe is basically motor skills। समझ में आया? तो इसीलिए पैरिएटल लोब आपका सेंसरी लोब है। चलिए, गुड। थर्ड क्वेश्चन बोलिए। वायरस वायरस cannot be cultured in artificial medium। 4 बोलिए। सर homologous chromosomes, sister chromatids। homologous chromosomes। Correct। Yes. So this is the answer. Now, people suffering from albinism cannot synthesize. मेलानिन। चलिए। Now, short-sighted. Concave lens। और चुप है, शांत बोल रहा, सुनाई नहीं दे रहा है। अब देखिए, शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या है? आपको पास का दिख रहा है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मायोपिया? Yes sir। बोलो। शॉर्ट साइटेड। Shut up. A person can see near objects but cannot. चुप। Sorry sir। Shut up. श्रुति महापात्र बेबी, आप तो मैंने इस पर कुछ नहीं बोला। ओह यार, मैं डांट नहीं रहा हूँ। तो श्रुति जी, आपका जो पति हो वो पढ़ा लिखा हो या बस ड्राइवर चाहिए आपको? और ये कैसा सवाल है? ऑब्वियसली भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पढ़ा लिखा हो तो मायोपिया मतलब मेरे पिया को हो मायोपिया, समझ में आया कि नहीं? मायोपिया माने मेरे जो पिया हैं उनको क्या हो? मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस। इसीलिए तो शॉर्ट साइटेड क्यों है वो इडियट? क्योंकि वो जिंदगी भर पास का चीज देख रहा था, किताबें, दूर का नहीं देख रहा था, किसी और लेडीज हॉस्टल। तो समझ में आया? तो दूर जो झांकते हैं लेडीज हॉस्टल में, तो उनको दूरदृष्टि दोष हो जाएगा, हाइपर मेट्रोपिया। तो समझ में आया?
इसीलिए तुमको कौन सा पिया है श्रुति जी? सर मेरा हाँ, मायोपिया। मायोपिया। तो ऑब्वियसली तुम्हें भी जो चाहेगा, जो तुमको बीवी बनाना चाहेगा, उसका भी सपना क्या हो कि मायोपिया जो हो उसे मायोपिया हो। माने उसका पिया को क्या होना चाहिए? मायोपिया। देख रहे हो बायोलॉजी कैसे मजेदार में समझ आता है। तो दोज हु कॉइन्ड द टर्म मायोपिया दे आर इंडियंस। उनको पता था मायो माने मेरे, पिया माने वाइफ हस्बैंड। तो मायोपिया को क्या होना चाहिए? मायोपिया। आ गया मजा? चलिए बैक टू बिजनेस। सो लेट्स गो बैक टू ट्रैक। तो एक्चुअली मायोपिया में क्या होता है, आपको पास का चीज दिखता है। फाइन। सो नाउ लुक एट दिस डायग्राम। तो सपोज ये हम लोग बनाएंगे आई, ओके, एंड ये आपका लेंस है। तो अब आपका पास का इमेज रेटिना पे गिर रहा है। अंडरस्टूड? ये इडियट जो है, तो आपका पास का इमेज जो है इट इज फॉलिंग ऑन रेटिना, सो योर लेंस इज एकोमोडेटेड। अगर हम इमेज को दूर ले जाएंगे तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को, तो इमेज क्या होगा? इट विल फॉल इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इसलिए आपको कौन सा लेंस चाहिए? डाइवर्जिंग लेंस। तो ये रे को डाइवर्ज कर देगा, है कि नहीं? ये रे को डाइवर्ज करेगा एंड अब जो है इमेज रेटिना पे गिरेगा। सो दैट इज व्हाई द आंसर इज यू आर करेक्ट, कॉनकेव लेंस। क्योंकि ना देखो, हमें आंसर नहीं मालूम होना चाहिए, हमें लॉजिक मालूम होना चाहिए। क्योंकि लॉजिक आएगा ना तो दुनिया में हर आंसर आ जाएगा। आ गया मजा? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 7 बी। बी सर। सर ऑप्शन बी। बी। sir. यस, B. वेरी B करेक्ट। sir, B. ओके, आ गया मजा? चलिए उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज फाउंड इन डीएनए? सर माइटोकॉन्ड्रिया बी। Mitochondria B. Option B. ऑप्शन बी। एनिमल सेल्स, हाँ क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। और किस में डीएनए होता है? Plastids. नो, प्लास्टिड्स में डीएनए होता है। कौन गधा तुमको पढ़ाया है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। नॉट ऑल प्लास्टिड्स माय डियर, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होता है। एंड जब जेजेस आपको कभी, एक्चुअली आई विल नॉट टीच यू सेल, बट जेजेस जब सेल पढ़ाते हैं तो पेरोक्सिसोम में भी डीएनए होता है, बट एक्चुअली पेरोक्सिसोम का डीएनए नष्ट हो जाता है। सो वी विल डिस्कस, एक्चुअली यू विल नॉट रीड दिस फ्रॉम मी। ये बायोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, जब उसमें पढ़ते हैं, आई टीच सेल आउटसाइड नॉट इन स्कूल। तो इसलिए एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स ऑल आर होमोलोगस ऑर्गेनेल्स। ये हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए 9 बताइए। सी। सी। Guanine and cytosine. C C. sir. Yes. C sir. चलिए वेरी गुड। सॉरी मैं करेक्ट मार रहा था। हो गया? चलिए अगला बोलिए। सी। डी। Conjugation. D. D. Conjugation. D. सुनिए, Conjugation. नॉट ए मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल। कंजुगेशन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड होता है, ठीक है? चलो वेरी गुड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ एनिमल्स कंस्टिट्यूट लार्जेस्ट बायोमास ऑन अर्थ? Insects. Yes. More than 90% of the organisms are insects. अब आ जाइए, कैन यू टेल मी द रीजन बिहाइंड देयर सक्सेस? बोलिए। Reproduction is faster. नो, यही चीज आपको जानना है। दैट इज कॉल्ड काइटिन। काइटिनस स्केलेटन। यस,
तो काइटिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ इंसेक्ट्स, ये हम पढ़ेंगे। चलिए अगला बोलिए, इन द डाइजेस्टिव सिस्टम द पीएच आर, बताइए। Acidic and neutral. Sir, neutral. Acidic alkaline. इंटेस्टाइन में क्या होगा? acidic neutral. इंटेस्टाइन का क्या पीएच होता है? सर HCl का जितना होता है यूरिया 1.2 बोलो। 2.2 1.2. HCl is 1.2. ओ चुप है, इंटेस्टाइन का क्या होता है बताओ? अल्कलाइन होता है। Yes. अल्कलाइन होता है, बेसिक आंसर इज बाइल जूस आता है। तो बाइल जूस भी अल्कलाइन होता है माय डियर। तो बाइल इज ऑल्सो अल्कलाइन। आ गया मजा? चलिए तब आप नेक्स्ट बोलिए। यूरिया चलिए गुड। नाउ हो गया, एक्साइट मत हो। नाउ यूरिक एसिड किस किस का होता है बोलिए? सर बर्ड्स का। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अमोनिया किस किस का होता है बताओ? ह्यूमन हैं? अरे भाई मैमल ह्यूमन नहीं है। फिश एम्फीबियन। तेरे को मरने का बहाना ढूंढ रही है। तो यस यस, फिश एक्वाटिक एनिमल्स। ओके चलिए उसके बाद आ जाइए दूर। ओके अब आ जाइए नेक्स्ट 14 बताइए। नंबर नहीं सी पता। सॉरी नॉट ए जेरिक हैबिटेट। जेरिक का मतलब क्या होता है बोलो? सी व्हाट इज जेरिक? विदाउट क्रिटिकल ऑन स्टेम एंड लीव्स सी जो डेजर्ट एरिया में रहता है यस जीरोस का मतलब होता है ड्राई। तो उसमें क्या नहीं होता? हाँ यस ये क्यों? यस तो इससे क्या होगा? सारा लॉस हो जाएगा ट्रांसपिरेशन से। वाटर लॉस चलिए तो उसके बाद आ जाइए 15। एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। चलिए ओके अब आ जाइए नेक्स्ट। ये थोड़ा ये देखो, ये इस तरह के केवीपीआई क्वेश्चन आते हैं। ये ऐसे कोड है, ऐसे कोड माने जो आप 11th में देंगे, समझ में आए? इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। और ये तो हलवा है। अरे हलवा पूरी सब मिलेगा बेटा, डोंट वरी। चलिए अब सी दैट इज द केस, यू नो, हलवा नहीं। अगर आप सबको करेक्ट आएगा तभी तो मार्क मिलेगा ना। अब ऐसे कोलाहल में थोड़ी होता है। तो जब मैं ऐसे टेस्ट आपका गूगल फॉर्म में लूंगा तो पता चलेगा कि हलवा है या सूजी का उपमा। चलिए नेक्स्ट। एंड यू आर गुड स्टूडेंट्स, व्हाई आर यू वरीड अबाउट दैट? तो इसलिए हम और तुम मिलके डिस्को करेंगे, डोंट वरी। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स बताइए। ये जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, समझ रहे हो? सर सी आई विल ड्रॉ इट, आपको समझाऊंगा। सुनिए अब ये क्रोमोसोम है, ठीक है? सो ये मम्मी वाला क्रोमोसोम है एंड सपोज ये डैडी वाला क्रोमोसोम है। तो ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसमें ये दोनों को क्या कहा जाता है एंड ये दोनों को क्या कहा जाता है? सिस्टर। तो ये आपस में सिस्टर हैं, ये आपस में सिस्टर हैं, बट इन दोनों को क्या कहा जाता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स सिस्टर। समझ में आया? तो अब आपको पूछ रहा है इसमें अगर इधर कैपिटल ए है तो इधर कौन सा जीन होगा? कैपिटल ए ना स्मॉल ए, ना कैपिटल ए और स्मॉल ए, ना पता नहीं। बोलो
ओके पता नहीं सर। अब आ गया हलवा का मजा। डिडिंग 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 डिडिंग। अब शायद सुनिए सी होगा। सुनिए एक्चुअली सेम एलील्स ऑफ द सेम जीन एट द सेम लोकस। वेरी गुड। सो दिस इज द आंसर। क्यों? बिकॉज एक्चुअली दीज टू आर जीरोक्स कॉपीज। समझ रहे हो? तो आपका ये था, आपको डैडी ने दिया, सपोज मम्मी ने, एंड ये डैडी ने दिया। जैसे ही एस फेज में गया तो ये ऐसे डबल डबल हो गए। तो ग्रीन को एक और ग्रीन मिल गया एंड पिंक को एक और पिंक मिल गया। तो ये दोनों को सिस्टर कहा जाता है। तो अगर यहाँ कैपिटल ए है तो डबल होने के बाद यहाँ कैपिटल ए ही आएगा ना। बट अच्छा अगर यहाँ पिंक में कैपिटल ए है तो ग्रीन में क्या आएगा बताओ? आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस सर कैपिटल